सुचिस्मिता, Yes, sir. sir has joined, principal sir has joined. So now you can start. Okay, sir. Good morning to all present here. I, Suchishmita Banerjee, a third-year history honors student, welcome you all on behalf of the committee celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of India's independence, in collaboration with Department of History, Atmaram Sanatan Dharma College. Based on the generous concept of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is my family, the Indian subcontinent has accommodated and integrated many communities from time immemorial. Moreover, our prolonged struggle against foreign domination has aided the feeling of nationalism to grow, undermining the differences based on ethnicity, religion, and caste. And the nation was created, proudly portraying the phrase unity and diversity at every aspect. I would now request our principal, Professor Gyantosh Kumar Jha, who is also the patron of this celebration, to address the gathering. Thank you. Good morning to all. Honorable Professor Syed Inayat Ali Zaidi, colleagues, convener of this program, Mr. Dipankar, and dear student. On behalf of Atmaram Sanatan Dharma College and the committee for the Azadi Ka Amrit Mahotsav, it is a great pleasure and honor for me to welcome Professor Syed Inayat Ali Zaidi in this webinar. In fact, we are organizing series of webinars in the event Azadi Ka Amrit Mahotsav. I am thankful to Professor Zaidi that he has given his valuable time to deliver a lecture on a very important and pertinent topic, discourse on making of Indian nation. I think not only history students but all students of all streams will be benefited with his lecture. So, once again, I welcome you, sir. And thank you, Shukriya. Thank you, sir. For organizing this wonderful seminar. Thank you. Thank you, sir. Your guidance and presence has always been an inspiration for us. It is with great pleasure and honor that I introduce our key speaker for the day, Professor Syed Inayat Ali Zaidi. He has completed his PhD from Aligarh Muslim University and has over 38 years of teaching and 45 years of research experience. Sir has served as the professor, department head, and dean of the Faculty of Humanities and Language, Jamia Millia Islamia. The major projects undertaken by him include role in promotion of heritage, culture, tourism, study of Tafri-ul-Imarat, edition, annotation, and translation, and the Hindi translation of Abdul Ghaffar Mudholi's autobiography entitled Ek Muallim Ki Zindagi from Urdu under the program DRS SAP History Department JMI. Apart from these, he has coordinated in various programs, served as a member of several academic bodies, delivered memorial and public lectures, authored a dictionary of historical terms in English, Hindi, and Urdu, written several books on tourism, and numerous articles for reputed journals. Speaking of awards, he has been awarded the Commonwealth Academic Staff Fellowship by School of Oriental and African Studies, University of London, a 3-month visit to Paris under UGC's Cultural Exchange Scheme for Young Social Scientists, visitorship by Center of Advanced Study in History, Aligarh Muslim University, and even served as the General President of Rajasthan History Congress, Jodhpur, from 8th to 9th of November 2014. It is our utmost pleasure to have you amongst us, sir. Today, he will be speaking on the topic, Making of the Indian Nation.
I request the participants to write down their queries in the chat box, and I will be reading them to Sir one by one in due course. Now, I request Sir to take over. Just you have asked me to just start my Yes, lecture? sir. Oh, yeah, okay, thank you very much. As in fact, Professor Gyan Tosh Kumar Jha Sahab and Sushmita said that I will be speaking on a topic, discourse on making of Indian nation. But before that, I would like to express my thanks to both the Jhas for inviting me and asking me to speak on such an interesting topic, particularly in the present time. And I will try my best in that sense to link it with the present time also. So it needs some kind of a quick survey. That is how actually nation was, Indian nation particularly, or other nations were created. That is important. You see, from primitive society to tribal society, first of all, then tribal monarchy was established. Then in India, Janpadas and Mahajanpadas, and then empires and imperialism. Then after that, actually, the concept of nation came into being. As I actually, I presented a paper long back in Aligarh. There I concluded my that paper that was on Watan Jagir, that nation is not created in one day or one decade or one century. It takes long time to create a culture. Yeah. There the people themselves think that we are part and parcel of that particular nation. So thereafter there was a book on Professor Irfan Habib edited that book, Idea of India, that was there. But you see, the concept of nation came into being, as we know, in 1789 after the French Revolution. And after that, after the French Revolution, then France was created as a nation. Then we see after that, after almost 100 years, unification of Italy. Italy emerged as a nation, then unification of Germany, then Germany emerged, then many other nations. So on what actually basis those nations were created, and how our actually process of creation of Indian nation is rather same or different. There we can see like that, and you can see yourself. You see, so traveling through the above stages, India became a nation, independent nation, no doubt, with a place. What kind of place we declared India as a nation? Sovereign, socialist, secular, and democratic republic. After that, in fact, the major points which we highlighted in our justice, liberty, equality, fraternity. I would like to say that in the past, all these actually elements existed in the form which we are, in fact, which we are actually understand today. But my point, in fact, in one way or other, in proto kind of a form, these elements existed, and the foundation was laid in such a way of all these actually aspects that there was no problem when Mahatma Gandhi started, or other leaders of India started to talk about Indian nation and to get rid of the colonial regime. So the people were already culturally were actually binding, and so no, there was rather I would like to say it was easy, in fact, to form a nation in that way. Now there was a complex problem, no doubt. So first of all, we would like to see how the geographical entity or identity was created. What kind of a geographical entity or identity was there? If we go into, we shall take the cultural part also.
if we go into the sources, particularly certain travelers, for example, Arabic sources. Arabic sources are very, very interesting. And many of us, in fact, are not familiar and we don't study. If we go through the Arabic sources, Persian sources, then I recall actually Edward Said. He is actually rather Orientalism. I can understand very well. Then later on, when I read the European travelers. So Arabic sources and the Arab writers at that time, they were so fascinated with Indian culture. One or two example I would like to cite here, and they were very much, in fact, uh, appreciable about Indian way of life. Now they came as a trader, but also they also, in fact, they participated in some kind of a social and cultural activities and noticed all these activities in their travelogues. For example, as Susmita said that heritage and culture tourism, I uh, I actually taught and I also studied about that one. Uh, the word incredible India, the Ministry of Tourism spent lot of money, and in fact, after some time, they coined a word incredible India, Adbhut Bharat. But in fact, in the 10th century, the Arabic source says the word which has been used, that is called Ajaibul Hind. That is the exact translation of the incredible India. So already India had that kind of image in that respect, that Indian culture was Ajaibul Hind or incredible India. Already that concept already existed. Why they called it incredible India? Not because of that reason they liked India, but because of certain uh, reasons. Actually, that is important to understand. For example, about medicine, they talk about medicine. In medicine or medical science, India was very much developed. And in because of this reason, in fact, they call the Indian medical system is excellent. And many Indian physicians were taken to Arab Peninsula. In, and then, in fact, they talk about certain medicines and certain women physicians, that their names are recorded in those actually sources. And Arusa, she was one of the lady physician, and she wrote about 104 diseases of women. So like that we do, because of that reason, in fact, they say Indian culture is, or India is incredible India, or Indian culture is very rich. Similarly, they talk about mathematics. That said, India is excellent in mathematics. If any Arab person wants to learn mathematics, then his child should be uh, associated with Indian vegetable vendor. He says that vegetable vendor are so, in fact, efficient in calculation. And even today, I can imagine, I can't calculate it in such a swift way that the vegetable vendor they can. So they appreciate Indian culture in this. Therefore, they gave the name of actually incredible India. That is the. So that kind of image about India existed already in the Arab Peninsula. And then quickly I say Al-Biruni. Al-Biruni, if you go through Al-Biruni, he talks about Bharat, Aryavarta, and extensively talk about Indian way of life, and particularly he learned Sanskrit, that is important, and he was very much to the Pandits and Brahmins. His actually information
एक सेकंड, मैंने अब मोबाइल से एक दफा मिलाया, वहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई है। हाँ, लैपटॉप पे। हेलो, आवाज आ रही है अब? हाँ सर आवाज आ रही है। ठीक है, इसमें आवाज पूरी साफ नहीं है। जैसे हेलो, मैं बोलूँ फिर? हाँ सर, यू कैन कंटिन्यू, वी आर लिसनिंग टू यू। हाँ, शुक्रिया। तो एक we were talking about geographical territorial entity or identity in that reference के इब्न बतूता की मैं बात कर रहा था। इब्न बतूता जो है वो किस तरीके से उसको लिंक करता है। इब्न बतूता जब एंटर होता है खैबर पास से, तो फिर वो जो है बात करता है कि यहाँ पर जो दरवाजे चेक पोस्ट, हर आदमी को ऐसे, दैट इज इंटरेस्टिंग इन सेंस, ये नहीं था कि वो जो चाहे जो आए और वहाँ फ्रीली जो एंटर कर जाए। इट इज ए वेरी कॉमन परसेप्शन कि इंडिया जो है खुला था, ऐसा नहीं था। वहाँ चेक पोस्ट थी, वहाँ ऑफिशियल्स थे। हेलो हेलो Yes, sir, you हेलो। are audible. हाँ, सो देयर वाज अ चेक पोस्ट, और उस चेक पोस्ट पे इब्न बतूता कहता है कि वी वर स्टॉप देयर, एंड उन्होंने हमारे साथियों का और हमारा सबका उन्होंने सामान चेक किया, और सामान चेक करने के बाद जो है उन्होंने हमें अलाउ किया। इन एडिशन उन्होंने बाकायदा एक तरीके से उनसे एक जो है श्योरिटी भी ली, और पेपर्स जो है वो फिलअप किए कि वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ रहेंगे, और पास में ये कोई दरगाह थी, उनको रहने के लिए वो जगह दी। तो कहने का मतलब है कि फिर तमाम वो दूसरे एक्चुअली जो बाहर के जो एम्बेसडर्स वगैरह थे, दे वर आल्सो कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, they were also received by these common men, because Ibn Battuta was considered a common man in that sense at that time. So ये तमाम होने के बाद they started from there, and Ibn Battuta and company, they reached Delhi. Then he gives different description of Delhi, etc., and he stayed in Delhi for a long period. So my point is, in fact, there was a territorial identity or entity, what Ibn Battuta says, and then, in fact, we see Akbar. Akbar in the Aine Akbari, what Akbar says, that kingdoms are divided. The concept of uh, uh, borders or territory was very much there. Kingdoms are divided from each other by rivers, mountains, deserts, or languages. These, so if similarly Jahangir, when he was coming from Kashmir, coming back to India from Kashmir, then he gives interesting information, and he says that from Behram Galla, when he reached Behram Galla in Kashmir, he says, from here, India begins. Or on what basis he says that India begins from here and Kashmir is different, to in that way different, on the basis of climate, on so many other actually things. He says many monkeys were seen in Behram Galla, and from that stage a great difference was apparent in the climate, the language, the clothing, the animals, and whatever properly belong to a warm country. The people here speak both Persian and Hindi. Evidently, Hindi is their real language, and they have acquired Kashmiri on account of the proximity of Kashmir. Briefly, one enters India at this place. The women do not wear woolen clothes, and like Indian women, they wear nose rings. So this kind of a, I would like to say, concept or notion was very much there in at that time. It was not so that there was not that kind of a nation of boundary or limit. So after seeing this kind of entity, I would like to see how, in fact, India as a whole was created as a nation, and how the foundation, cultural foundation, was laid down in our historical process. Then political and administrative entity and integrity. How, in fact, the political and administrative entity was created, and integrity, territorial integrity of India was created. That is
in text to see, and it must be seen in the concept of long during. And when we talk about Ashokan pillars is stump were actually, we know they were in South India, they were in East India, they were in Northwest India. So these stump or pillars created a culture and integrated India in as a one entity or one. So that was then again we see, in fact, Ashok made the road from Peshawar to Calcutta. पेशावर से कलकत्ता एक पूरी जो है उसने, जो बाद में हम ज्यादातर शेरशाह सूरी को क्रेडिट देते हैं, but that was actually hello जी, Yes, sir. You are audible. that was actually revived. That was revived by later on by Shersha Suri, and even Britishers. In fact, they revived. And on this actually road, as we know, post minars were constructed for the travelers, etc. So, when we see the political process, so from different parts of India, the local chiefs were recruited in the nobility, and it was from the very beginning of the Sultanate that during Muhammad bin Tughlaq's period, we come rather before that. In fact, even Alauddin's time, the much notorious Sultan is considered by some persons unfortunate, and then there was a discussion on TV, and as we the students of history know, his contribution to in the development of India, बहुत सारी चीजें जो है उसने जो बाकायदा मार्केट कंट्रोल, रेप के खिलाफ उसने जबरदस्त कदम उठाए, और शराबबंदी उसने जबरदस्ती, अगर उसकी कंपेयर करें हम, कहीं पर हमें इस तरह की उसकी इमेज नहीं मिलती है जिस तरह की इमेज उस पिक्चर में दी गई है, और पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ने उसको जो है बहुत ज्यादा तरजीह दी और वो किया। तो एक साहब वहां पर MP थे, तो मैंने कहा उसकी कैरेक्टर एसिसिनेशन है, तो वो कहने लगे हाउ कैन यू से दिस कैरेक्टर एसिसिनेशन, यू सी औरंगजेब, यू talk about Alauddin Khalji. So these people, in fact, unnecessary, without having knowledge about historical facts, they are adamant to destroy the real history of India, and that is very much important. How, in fact, it was created or played important role in creation of modern Indian nation. It is so. So from very beginning, from different parts of the region, the nobles were taken into service. They were assigned important offices in Sindh, in South India, by Muhammad bin Tughlaq. We do find the names of those persons and places, that is well known. And then you see, then before that, Alauddin Khalji, in Rajasthani sources, we come across that Alauddin Khalji, he has his personal bodyguards. There were 2 Rajputs from Rajputana. So in that way, slowly and gradually, जैसा कि सल्तनत का ग्रो हो रहा था और एक्सपेंशन हो रहा था, तो लोकल एलिमेंट्स बहुत जरूरी थी कि लोकल एलिमेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया जाए, और जो ये एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस था उसके अंदर इंडिया की आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी बाकायदा मजबूत होती जा रही थी उस टाइम के साथ। अब अगर हम सीधा उस पर आए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, तो अकबर के टाइम में हम देखते हैं कि बाकायदा वेरी सिस्टमेटिक, उससे पहले तो बाकायदा रीजन थे, वहाँ के जो चीफ थे बट दे डिफीटेड, और उन्होंने पेशकश दी और उन्होंने बाकायदा हेजेमनी एक्सेप्ट कर ली, तो दे वर लेफ्ट फ्री टू रन देयर ओन स्टेट। लेकिन अकबर ने बहुत सिस्टमेटिकली अपने इन लोगों को रिक्रूट किया
लोकल चीफ्स को इररेस्पेक्टिव एनी रेशियल ग्रुप्स जो भी यहाँ लोकल थे, जो नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ और वेस्ट से लेकर राजपूत से लेकर के इस इंडिया की तरफ से सबको इनको, और जैसे जैसे एम्पायर बढ़ता गया औरंगजेब के टाइम तक, और यहाँ के लोकल एलिमेंट्स को नोबेलिटी में शामिल किया गया, जिससे वहाँ के नोबल्स और दूसरे नोबल्स they live together, they identified themselves in a particular with a particular region. तो इसको अगर हम ले तो अकबर जो था उसने अपने एम्पायर को सूबा में बांटा, सूबाज में, और with the definite boundaries of the सूबाज. And initially अकबर ने 12 सूबा बनाए, और 12 सूबा जो है उसके बाद अकबर के टाइम में 15 सूबाज हो गए, एक्सपेंशन हुआ, और बाद में जाकर के औरंगजेब 17 और 18 इस तरह के सूबा बने. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस और थ्रू इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, यहाँ और जिस तरीके से जो है उन्होंने पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन इन सेंस के वहां पर जब जागीर साइन की गई इन लोगों को, अकबर ने जो है ट्रांसफर सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कर दिया था, और ट्रांसफर सिस्टम में, और दूसरा अकबर ने ये किया था नोबल्स को, जैसा कि आप जानते होंगे बहुत सारे जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं साथी, क्या अकबर ने जो होमोजिनिटी थी इसकी मिलिट्री कंटिजेंट्स की, नोबल्स की, क्या वो अपने ही ट्राइब से रिक्रूट करते थे या रखते थे अपनी मिलिट्री का? अकबर ने उसको कहा कि नहीं, आपको डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स को इनमें रखना है, और उसने फिक्स किया. देखिए उसके बाद जो फ्लेक्सिबिलिटी अकबर के दिमाग में, उसने राजपूतों को छूट दी, बिकॉज इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द राजपूट्स टू फाइंड तुर्क्स एंड द पर्शियंस टू रिक्रूट इन देयर मिलिट्री कंटिजेंट्स. तो उनको छूट दी कि वो अपना पूरे राजपूत रख सकते हैं, तो वो अपने बहुत अच्छी तादाद में राजपूत रखते थे. लेकिन ईरानी और तुरानी नोबल्स के लिए जरूरी था कि वो अफगान भी रखे, वो राजपूत भी रखे, वो शेखजादाज भी रखे, है ना, ये उनके लिए. तो इस तरह के जो है उसने एक तरीके से हेट्रोजिनिटी, जिसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं, वो की. इसी तरह से वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन थे, सूबा, सरकार, परगनास एंड द विलेजेस, वहाँ जो लोकल इनफैक्ट जो लोकल क्लर्क्स थे या लोकल जैसे वहाँ के ऑफिशियल्स थे गांव के और परगनास वगैरह के, उनको रखा. और बल्कि 2 तरह की लैंग्वेजेस में, डुअल लैंग्वेजेस में, बाइलिंगुअल के अंदर रिकॉर्ड्स रखे गए, जैसे राजस्थान में बाकायदा राजस्थानी में और पर्शियन में, और अलग ऑफिसर्स होते थे दोनों को चेक करने के लिए. उसी तरह से साउथ में मराठा, अभी भी हमें वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है. तो इस तरह की जो है डाइवर्सिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दी गई. ये नहीं, इम्पोजिशन नहीं था कि आपको जो है पर्शियन में ही रिकॉर्ड रखना है. वो दोनों तरह से के चेकिंग भी थी, और उनको ये छूट. इस तरह से अकबर ने जिस तरह से जो शुरुआत की सिस्टमेटिक, उसने ये इंप्रेशन दिया कि वो पावर की भी शेयर करेगा लोकल चीफ्स के साथ, और वो वेल्थ भी शेयर करेगा. और किसी तरह से उसने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया ऑन दी बेसिस ऑफ रिलीजन एंड सेक्ट. उस पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. सबको मेरिट और लॉयल्टी के हिसाब से, मेरिट एंड लॉयल्टी के हिसाब से मनसब दिए जाते थे, प्रमोशन होते थे, और ये तमाम चीजें हमें, और वो बात तक रही हमारे उस जो है मुगल पीरियड तक ये सिस्टम चलता रहा. जैसे मैं अर्ज करूं आपको, मेरिट एंड लॉयल्टी. अब मेरिट वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया, लॉयल्टी वाज नॉट द फर्स्ट क्राइटेरिया. मैंने एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंट किस तरीके से लोगों में कॉन्फिडेंस क्रिएट किया गया लोकल चीफ्स में. फॉर एग्जांपल राजा बहारमल, ही वाज द फर्स्ट राजपूत चीफ जिसने सर्विस ज्वाइन की अकबर की. जब उसने सर्विस ज्वाइन की और सर्विस में आ गया, तो 71 में 71 में जब अकबर गुजरात गया, तो पूरा का पूरा एम्पायर बहारमल के हवाले कर गया आगरा में, और वजीर मुतलक उसको बना करके गया, और खुद जो है गुजरात चला गया. तो ये एक कॉन्फिडेंस राजपूतों के अंदर
राजपूत चीफ्स में हुआ कि, और यही वजह थी कि राजपूत चीफ्स लास्ट तक जब मुगल एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, दे वर नॉट इंटरेस्टेड कि द मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो, पतन हो, वो नहीं चाहते थे डिक्लाइन हो और पतन हो। उसके बाकायदा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। बहुत रिलेक्टेंटली दे शिफ्टेड टू देयर ओन वतन जागीर एंड क्रिएटेड, नए सिरे से उन्होंने अपनी जो है रियासतें बनाई वो इसी वक्त। और ये जो बाकायदा 12 में से 4 सूबे आप देखिएगा, 12 में से 4 सूबे जो है वो राजपूत चीफ्स को वहां का सूबेदार बनाया। 12 में से 4 सूबों का, 8 सूबों में दूसरे बने। और जैसा कि मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मेरिट और लॉयल्टी की बात, एक एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से मेरिट, लॉयल्टी और मेरिट में बाकायदा तरजीह दी गई कि राम सिंह जो है कछुआ था, और राम सिंह बहुत क्लोज था राजा मान सिंह के। और राजा मान सिंह जो था, ये राम सिंह बहुत गरीब था। इट इज पाटल कोठारी क्या था जो पटना खुदाबख्श लाइब्रेरी में वो प्रिजर्व है, और जो है डेट हैज बीन एडिटेड। अम्बास्तिया साहब ने उसको ट्रांसलेशन भी किया, एडिट भी किया, अवेलेबल है और सोर्स में, राजस्थानी सोर्सेज में और पर्शियन सोर्सेज में। राम सिंह का बहुत क्लोज, ही वॉज वेरी क्लोज टू अकबर, और जो है हरम का वो इंचार्ज रखा गया था, वो राय साल दरबारी पूरा का अकबर के टाइम में और जहांगीर के टाइम में। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि लॉयल्टी का जब ये सर्विस में आया, और जब इसने प्रिंस ने जो है ये जहांगीर का बेटा खुसरो ने रिवोल्ट किया, तो उस वक्त जो है डिवीजन हो गया नोबिलिटी में। और डिवीजन वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस लाइंस, डिवीजन वाज ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। मानसिंह और अजीज को का एक साथ थे, एक का दामाद था, एक का भांजा था। और राम सिंह, फैसल दानवी and many others, they were not with Jhanvi, but they were supporting indirectly. Ram Singh was the in charge of the imperial treasury. राम सिंह और फैसल दरावी दोनों इंपीरियल खजाना इंचार्ज थे। तो अजीज को आपकी आवाज आ रही है सर। अब आ रही है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब अच्छा, हेलो, हाँ हेलो, हाँ सर। आप जब मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब मान सिंह राम सिंह के पास गया और उसने चाबियां मांगी कि मुझे दे दीजिए, तो उसने कहा कि नहीं, आई एम वेरी सॉरी, मैं जहांगीर की जो है उसके अंदर सर्विस में हूँ। तो उसने उस पर मान सिंह को गुस्सा आया और उसने तलवार निकाली। उसने कहा, महाराजा आप मेरी गर्दन काट दीजिए, लेकिन मैं आपको चाबियां नहीं दूंगा। और चाबी देने से उसने बिल्कुल इनकार कर दिया इंपीरियल ट्रेजरी की। तो उसके बाद जब जहांगीर तख्त में बैठा और कामयाब हुआ, तो मान सिंह को तो वो ओल्ड वॉल्स कहता है दोनों को, मान सिंह और अजीज को, लेकिन उसका बज़ाहिर एमनेस्टी डिक्लेयर कर दी थी उसने। लेकिन राम सिंह का मनसब उसने बढ़ाया। जो भी राजपूत और नॉन राजपूत जिन्होंने साइडेड विद जहांगीर, they were promoted, they were assigned important offices उसके एक्सेशन के बाद। तो उसके बाद he was very close to जहांगीर। लेकिन जब वो दक्कन में उसकी पोस्टिंग हुई और दक्कन में वो अब्दुल्ला खान उज़्बेक के पास, वो जो है दक्कन में, वहां पर वो किसी फोर्स से लड़ते हुए पीछे हट गए, तो जहांगीर became very furious when he came to know
देख ये नोबल जो है पीछे हट गए हैं। तो उसने, इससे एक चीज और हमें पता लगती है कि जहांगीर ने, जो तुजू के जहांगीर जी में रिपोर्ट, जहांगीर ने इसकी जो है पोर्ट्रेट मंगवाई। ये पोर्ट्रेट रखते थे जैसे आजकल हमारे पास फोटो आइडेंटिटी है, उस तरह की पोर्ट्रेट मंगवाई राम सिंह की, और उसने थ्रो की कि तू वही राम सिंह है जिसको मेरे फादर ने तुझे इतना बड़ा मनसब दिया, आज तुझने मुगल एम्पायर की जो है शान जो है खराब कर दी है, और उसका ट्रांसफर कर दिया बंगस। वो पनिशमेंट का ट्रांसफर था। और वहां पर वो लिखता है कि जो मतलब जो इसको इंडस को पार करते हैं उनके जो है वो दोजख में जाते हैं, और तेरा यही हाल, और उसकी वहां पर डेथ भी हो गई। राम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि लॉयल्टी से ज्यादा मेरिट जो है दैट वाज इम्पोर्टेंट। देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है मेरिट का, ऐसा नहीं था कि बगैर मेरिट के जो है वो लोग काम असाइन करते थे या प्रमोशन देते थे। मेरिट वाज वेरी मच इम्पोर्टेंट, देन द सेकंड वाज लॉयल्टी इन दैट वे। तो इन चीजों, अब जब हम लेते हैं मिलिट्री कंटिजेंट्स को, मिलिट्री कंटिजेंट्स को अगर हम देखें कंपोजिशन, तो उसके अंदर भी अकबर ने, और उसके बाद हमें ये नजर आता है कि मिलिट्री कंटिजेंट डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट रेस के लोग हमें उस कंपोजिशन में नजर आते हैं। और दे वर गिवन फ्रीडम टू फॉलो देयर एक्चुअली बिलीव्स, टू फॉलो देयर रिलीजन्स। एंड मानसिंह इज नोन कि जो उसके यहाँ मुस्लिम सोल्जर्स थे, उनको जो है वो नमाज की, रोजे की पूरी सुविधा उसने बाकायदा दी गई थी। लेकिन हिंदू मुस्लिम की आइडेंटिटी बिल्कुल अलग थी, और वो मेंटेन की गई। वो एक, अब दूसरी जगह पे देखिए जो है मैं डिस्कस करूंगा ब्रीफली। टाइम जो है वो काफी नजदीक आता जा रहा है, टाइम बड़ा बर्बाद हो गया। तो रिलीजियस कंटिजेंट्स को हम देखें तो ये बाकायदा जेएनयू का जर्नल है, उसमें पेपर छपे हुए हैं, कुछ आप देखिएगा। और एक अलवी साहब उनका दक्कन पेपर पर है इन पे मिलिट्री कंटिजेंट्स पे नोबल्स की। तो वहां लगेगा कि डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स के जो है ऑर्डिनरी डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट रीजन्स के लोग जो है हम मिलिट्री कंटिजेंट्स में है वहां पर। तो इंडिया से जो आइडेंटिटी थी इनकी, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कि फॉर एग्जांपल मुझे मिला कि ये पाल के बियरर जो है, मुझे 17th सेंचुरी डॉक्यूमेंट्स में मैंने देखा जो राजस्थान स्टेट आर्काइव्स बीकानेर में प्रिजर्व्ड है, वहां मुझे नजर आया उनको देखते हुए कि ये कह रहे हैं कि ये जो है ये बिहार के हैं, बंगाल के। मेरी समझ में नहीं आया कि राजस्थान में जो राजपूत नोबल है, तो फिर मैंने पीछे जो रिसर्च का होता है कि मैंने देखा कि वाई दे आर आइडेंटिफाइड एज बिहारी एंड बंगालीज, नॉट बिहारी इन ए सेंस, डोंट टेक, जहाँ साहब नाराज नहीं होंगे, बिहारी जिस उसमें कहा जाता है लेकिन नॉट एक्चुअली जो है दे वर आइडेंटिफाइड एज बिहारीज एंड, तो आई थॉट कि वाई दे आर आइडेंटिफाइड एज बिहारीज एंड बंगालीज। तो मैंने आईने अकबरी देखी, तो वहां लिखा हुआ था कि ये जो बियरर है, पाल की बियरर्स, बंगाल और बिहार के जो लोग हैं, दे आर कंसिडर्ड द मोस्ट एफिशिएंट इन दिस प्रोफेशन। तो वहां से जो है जब मानसिंह वगैरह, व्हाट आई थिंक व्हेन दे वर एक्चुअली डेपुटेड देयर, अब जो है उस वक्त मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे जो है ये जो पाल के बियरर्स थे वो रिक्रूट किए गए और वो राजस्थान आए और सेटल हुए। इसी तरह से कश्मीरी साजिंदे, म्यूजिशियंस, उनका रेफरेंस हमें मिलता है इन मिलिट्री कंटिजेंट्स में, क्योंकि वहां सभी तरह के लोग होते थे। और बाकायदा ग्वालियर के जो है बहुत सारे साजिंदे। लेकिन फिर हमें जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलती है कि बीकानेर के अंदर जो म्यूजिक पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, जो अनूप सिंह जो बीकानेर का राजा था, उसने ला करके अनूप संस्कृत लाइब्रेरी में, अभी वो सारे के सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस लाइब्रेरी है। जो भी म्यूजिक पे रिसर्च करता है वो अनूप संस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर जाता है और उन एक्चुअली सोर्सेज को वहां पर देखता है। वो वहां से इसलिए दक्कनी बिरामन, गोस्वामी बिरामन, they came with, in fact, with these Rajput chiefs
टू दिस डेजर्ट रीजन, और वो राजस्थान की जो स्टेट्स हैं, जोधपुर, बीकानेर एक्सेट्रा, यहाँ पर वो लाए गए, और पूरे के पूरे महल्ले हैं, और वो अपने आप को अभी भी दक्कनी आइडेंटिफाई करते हैं। तो कहने का मतलब है, जो मूवमेंट्स है लोगों का, जो आइडेंटिटी है वो वहाँ की और यहाँ की, तो ये एक इंटीग्रेटेड टेरिटोरियल आइडेंटिटी क्रिएट हुई टेसिटली, विटिंगली और अनविटिंगली, रादर अनविटिंगली, और एक फाउंडेशन रखी गई। इसी तरह से एक और एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव हियर, कि जो राजा राय सिंह था, और जब उसकी पोस्टिंग अकबर ने दक्कन में कर दी, तो वहां पर एक वाइल्ड एलिमेंट प्लांट होता है, फोग, दैट इज कॉल्ड फोग, और उसने वहां पर देखा उस फोग को दक्कन में, और कहते हैं वो इतना इमोशनल हो गया, ये कहावत है बाकायदा राजस्थान, वहां पर बीकानेर वगैरह में जो है, जब उसने उस फोग को देखा तो वो इतना इमोशनल हो गया, कहता है कि उसने उसको गले से लगा लिया फोग को, जो है इसका रायता बनाते हैं तमाम, जो है इसकी पूरी एक, लोग वहां पर इसको बहुत अच्छा समझते हैं, ठंडा माना जाता है गर्मियों में। तो जो है मेरे चचा इंग्लैंड में, तो उन्होंने भी स्पेशली इसे मंगवाया, तो उसने इसको गले लगा लिया, और गले लगा के बोला कि माने तो अठे अकबर बादशाह भेजा, थाने अठे कौन भेजा, मुझे तो यहाँ अकबर बादशाह ने जो है डिप्यूट किया है, आपको इसने, तुम्हें किसने भेज दिया। तो ये एक कहावत, कहने का तात्पर्य ये है कि किस तरह से डेजर्ट के लोग जो है वहां पर अपने आप को आइडेंटिफाई उस रीजन से कर रहे हैं। और जब मैंने फोक की हिस्ट्री देखी कि किस तरह से फोक जो है, हेलो आवाज आ रही है ना, हेलो यस सर, हेलो, यस सर, हाँ, यस सर, फोक यस सर, की देखा आ कि रही है। फोक प्लांट बीकानेर में है, डेजर्ट में है, और वाइल्ड प्लांट है, और जो है, और वहां पर भी है। तो पता ये लगा कि बॉटनी की हिस्ट्री देखने पे कि फोक जो है वो ऑस्ट्रेलियन प्लांट है, और वो थ्रू एक्चुअली साउथ इंडिया इट सीम्स के वो राजस्थान आया। तो इस तरह से, इसी तरह से कांदा वर्ड है, कांदा वर्ड महाराष्ट्र में प्याज को कांदा कहते हैं, ओनियन को। बीकानेर में अभी भी लोग प्याज को, वहां के लोकल लोग प्याज नहीं कहते, कांदा कहते हैं, क्योंकि कांदा जो आया है वो वर्ड, ये बीकानेर डेजर्ट के अंदर कांदा जो है महाराष्ट्र से आया है। यही नोबल जो वहां अपॉइंट हुए वो लेकर के आए इसके पौधों को। तो कहने का मेरा सबमिशन है कि किस तरीके से एक इंडिया की आइडेंटिटी नीचे लेवल पे, फ्रॉम बिलो वाज क्रिएटेड विदाउट अंडरस्टैंड कर, बाद में जाकर के हमें ये कितनी मदद करेगी कि हम अपने आप को वननेस में, जो है डेजर्ट का आदमी है या वेस्ट का आदमी है, वो साउथ और साउथ का आदमी जो है इधर, जो औरंगाबाद के अंदर बहुत सारे अभी भी बिल्डिंग्स है जो राजपूत चीफ्स ने वहां पर बनाई, और अभी भी दोज आर इन डिलापिडेटेड कंडीशंस। तो इस तरह माफ, तो इसके अलावा हम देखते हैं कि रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी, अब जो उसमें शंकराचार्य के मठ है चार दिशाओं में, उससे भी एक जो है आइडेंटिटी क्रिएट हुई उन मठों से। सूफी दरगाह है बाकायदा, साउथ में शेख निजामुद्दीन औलिया के खलीफाज गए, दे इस्टेब्लिश्ड न्यू दरगाह देयर। और जो है यूरोपियन ट्रेवलर्स वो ये कहते हैं कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर इनके जो है उर्स में आते हैं यहाँ पर लोग। तो इसी तरह से पिलग्रिमेज के तौर पे बनारसी दास की देखिए आप, मुझे शुभ्रा ने किताब, डॉक्टर शुभ्रा ने सिन्हा ने किताब प्रेजेंट की, मेरी किताब एक्चुअली हमारे दोस्त इंग्लैंड से आई थी, तो एक दिन जब जैसे ही हम घर पहुंचे एयरपोर्ट से, तो दैट बुक इज सो फेमस कि उसने कहा, इनायत आई वुड लाइक टू टेक विद मी हाफ स्टोरी, माय हाफ टेल्स और हाफ स्टोरी, माय कलीग्स हैज आस्क्ड मी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड फॉर अ व्हाइल। मैंने कहा किताब का तो मैंने नाम ही नहीं सुना, क्या तुम, तो पता ही लगा वो अर्थ कथन, फिर समझ गया मैं थोड़ी देर में कि वो अर्थ कथानक की बात मैंने उसे दे दी। तो अभी शुभ्रा ने मुझे वो किताब दी और मैं एक आर्टिकल लिख रहा था उसी पे ही। तो बनारसी दास का देखिए तीर्थ यात्रा, तो पिलग्रिमेज पूरा का पूरा जो है नॉर्थ से लेकर के वो झारखंड जाता है, जो जेनीज का बाकायदा
तीर्थ स्थान है सबसे बड़ा, वो लेकर के वहां पर, और पूरा का पूरा उसका अंदर हमें वर्णन मिलता है और किसके ज्यादा बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन उसके अंदर। तो इसी तरह से महमूद बल्खी जो पर्शियन ट्रेवलर है, उसका इतना इंटरेस्टिंग है, और किस तरीके से वो इंडिया की बात करता है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अरब ट्रेवलर्स और अरबिक सोर्सेज और पर्शियन सोर्सेज की अगर हम देखें तो दे वर वेरी मच फैसिनेटेड, दे नेवर डिस्पाइज इंडियन वे ऑफ लाइफ कहीं पर भी। और इतना इंटरेस्टिंग है ये महमूद बल्खी का ट्रेवलॉग, वो बताता है कि जब मैं वहां पहुंचा तो लग रहा था एक जो है बाकायदा तीर्थ यात्रा का एक पूरा ग्रुप, बाकायदा जाहिर उस पूरा ग्रुप जाता था, तो वो जा रहा था, तो मेरा दिल भी चाहा कि मैं इसमें शामिल हो जाऊं और वो जगन्नाथ टेम्पल जा रहे थे, और जगन्नाथ टेम्पल की तरफ वो जा रहे थे, वो भी उसमें शामिल हो गया, और उसने अपने आप को एक्चुअली अपनी आइडेंटिटी और एक हिंदू की बनाई, वो लिखता है, और उसमें शामिल होकर के मैं पैदल जो है उनके साथ रवाना हुआ, और वो जो है ये कर रहे थे हरी बोल हरी बोल हरी बोल। आई आल्सो स्टार्टेड टू चेंट हरी बोल इस तरह से। और वो कहता है कि आई वाज सरप्राइज टू सी, क्या औरतें आदमियों के बदन एक दूसरे से टच हो रहे हैं, लेकिन कोई किसी को ये एहसास नहीं है कभी वो कभी कोई किस तरह की फीलिंग नहीं है। और जब वो कहते हैं जब बनारस पहुंचा मैं, तो बनारस के अंदर सबने स्नान किया, तो ये उस स्नान में देखा जब औरतें बाहर निकली तो उनका बदन, जब उनके कपड़े थे, कहने लगा अगर कोई फरिश्ता भी आ जाए आसमान से, इंडियन कल्चर की वो एप्रिशिएट कर रहा है आसमान से, तो उसका भी ईमान डगमगा जाएगा। बट देर इज नॉट ए सिंगल पर्सन का जिसको किसी भी तरह से कोई इल विल जो है उसकी हमें नजर आती हो। और उसी के साथ वो कहता है कि मैंने कुछ लोगों को देखा कि कुछ लोग जो मुस्लिम से वो जो है हिंदू बन गए हैं, तो मैंने उनसे पूछा इशारों में, इंसुमेशन की लैंग्वेज में, कि भाई कैसे, तो उन्होंने अपने सर पे हाथ लगाया और इशारा किया कि ये हमारे भाग्य में, डेस्टिनी में लिखा हुआ था, तो हम तो इस तरह से। फिर बाकायदा फिर बहुत लंबा चौड़ा जगन्नाथ टेम्पल का डिस्क्रिप्शन देता है, वो आगे जाना चाह रहा था। तो मैं अर्ज ये कर रहा था किस तरह से इंडिया थ्रू वेरियस वेज जो है इंडिया की एक आइडेंटिटी क्रिएट की गई, एक सिमिलर। उसके बाद भीमसेन, दूसरा जो है भीमसेन का अगर हम देखें उसका दिल खुशा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो भी कहता है कि नासिक के अंदर जो छोटा कुंभ मेला होता है, वहां से पूरी नॉर्थ इंडिया में पूरे लोग आते हैं, और नागा साधुज की तरह बाकायदा वो ग्रुप्स में आते हैं, और वो लड़ाई भी कहते हैं कि आपस में लड़ते हैं, कैवलरी पे आते हैं और इनके पास तलवारें हैं, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया से बहुत बड़ी तादाद में नासिक पर जाते हैं। और उसके बाद वो एक और सोशल जो है बाकायदा इंफॉर्मेशन उस तरह की देता है कि अपने फादर की बात करता है और अपने नोबल की भी बात करता है। दे वर वेरी क्लोज और विजिट टू ईच अदर हाउस, और खाना साथ में खाते थे। तो उसी के साथ वो कहता है कि एक दफा मैं भटक गया रास्ते में, वहाँ साउथ इंडिया में उसकी पोस्टिंग थी वहां पर की नोबल के साथ, तो भटक गया, तो हमारी तरफ कुछ जो है सोल्जर्स और कैवलरी मैन आने लगे, तो मैं डर गया कि अब जो है मैं नहीं बचूंगा। लेकिन जब वो मेरे पास में आए तो एक ने मुझे पहचान लिया, तो उसने कहा आप यहाँ क्यों आए? हिज नेम वाज नूर खान। तो उसने मुझे पहचान लिया, उसने कहा, उन्होंने दूसरे लोगों से कहा कि आपके साथियों से कहा आप चले जाइए, और फिर उसने मुझे एस्कॉर्ट किया, मुझे डेस्टिनेशन पे ले गया। फिर उसने उसको खाना अपनी गिफ्ट देना चाह रहा, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की कि मैं आपकी फादर की सर्विस में था, मैं ग्रेटफुल हूँ। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है नीचे लेवल पे भी, इट इज नॉट सो के ऊपर लेवल पे इस तरह की रिलेशनशिप थी, वो हमें नजर आती है। इसी तरह से अगर लॉन्ग ड्यूर में देखें हम इंडियन कल्चर को, तो एक जो बाकायदा जो अशोकन पिलर के साथ साथ जो वर्ल्ड व्यू था, जो अहिंसा का है, जैसे बुद्धास और महावीरा का अहिंसा जो हमारी बाकायदा एक ट्रेडिशनल जो है वर्ल्ड व्यू रहा है हिंदुस्तान का, जो कहीं पर नहीं रहा। बुद्धा का और महावीरा का अहिंसा वो रिलीजन तक ही कन्फाइन था, लेकिन अशोका ने इसको एक जो है इसको पॉलिटिकल फॉर्म में लेके आया,
और उसने कहा कि कोई ब्लड शेड नहीं होगा और इसके बाद कोई युद्ध नहीं होगा। हेलो, आवाज आ रही है दीपांकर? हेलो आ रही है हेलो। सर, आप बोलिए। हाँ, हाँ, आ कंटिन्यू आ सर। रही है सर, आ रही है। थैंक यू थैंक यू। कोई युद्ध नहीं होगा, किसी तरह का युद्ध नहीं होगा और किसी ब्लड शेड। उसने बट देयर वाज ए कंडीशन, अनलेस कोई ऐसा ना हो जाए कि कोई ट्राइब और कुछ ऐसा ग्रुप जिसपे ना चाहते हुए भी हमें हथियार उठाने पड़े, अदरवाइज उसको जो है अहिंसा का उसने बाकायदा उसको कहा कि पॉलिसी जो होगी स्टेट की वो अहिंसा की होगी। और उसी को अहिंसा को लेकर के अगर हम देखें, अकबर ने तकरीबन, मैं ये कहूंगा अकबर ने 20 साल रिसर्च की और 1580 में उसने इबादत खाना, तमाम रिलीजियस लोगों को, पंडितों को बुला करके डिस्कशन हुआ और लोग इस्लाम पे अटैक हुआ और लोग इतने उत्तेजित हो जाते थे इस्लाम पे अटैक होने पे, अकबर रोकता था। मेरे कहने का मतलब है कि अकबर ने बाकायदा इस पर ये, क्योंकि अभी 2 पेपर आए हैं और उससे एक पेपर पहले आया था, तो उसमें हमें कंट्राडिक्शन मिलता है। 1580 से 1580 तक जो उसका 20-24 साल का पीरियड है अकबर का इनिशियल, उसमें उसके एक्शंस में जो है कंट्राडिक्शंस मिलते हैं। तो ये एक दूसरे पे सवाल कर रहे हैं बड़े स्कॉलर्स के, ये कंट्राडिक्शन क्यों है। माई सबमिशन ये कि हिस्ट्री जो है वो सोशल साइंस है और सोशल साइंस में एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत है। ये अकबर का इंक्यूबेशन का पीरियड है, वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। वो दीन इलाही इज ए मिसनोमर, दीन इलाही वर्ड यूज नहीं हुआ है, आईने इरादात गाजीनान वर्ड यूज हुआ है। और जो है उसमें इसलिए दीन इलाही वर्ड जिस तरह दिया गया उससे कंफ्यूजन पैदा होता है। लेकिन अकबर ने एक ही आदमी को कभी मजबूर नहीं किया क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो तो देख रहा है कि लोगों का रिएक्शन क्या है, लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर, वो ये स्टडी कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। इबादत खाने में वो ऑब्जर्व कर रहा है, दीन इलाही से वो ऑब्जर्व कर रहा है। और जब इबादत दीन इलाही में मानसिंह से कहा अकबर ने कि भाई आप ये जो है नहीं, जो न्यूट्रल आइडियोलॉजी है नहीं है, जो कहा जाता है कि वो धर्म का और राजनीति का दोनों का लीडर होना चाहता था, तो उसे कहा एक्सेप्ट कीजिए। मान सिंह ने हाथ जोड़ कर कहा कि हिज मैजेस्टी आई नो ओनली 2 रिलीजियंस, हिंदुइज्म एंड इस्लाम। एज आई सेड क्या आइडेंटिटी अलग थी, उसमें मैं 1 मिनट बोल लूंगा बाद में। आइडेंटिटी दोनों की अलग थी, दोनों साथ खाना नहीं खाते थे, हिंदू और मुस्लिम्स। तो उसने कहा हिज मैजेस्टी आई नो ओनली 2 रिलीजियंस, हिंदुइज्म इस्लाम। तो उसने जो है एक्सेप्ट करने से दीन इलाही को मना कर दिया और जो है, लेकिन अकबर नाराज नहीं हुआ। मान सिंह का बाकायदा प्रमोशन होता गया, मान सिंह को उसी तरह से फर्जंद का जो बेटे का किताब दिया गया था उसी तरीके से इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स मिले गए, सिर्फ उसके 19-20 मेंबर्स बने। तो अगर अकबर रियली नए धर्म को चलाना चाहता था तो वो कई लोगों को फेवर करता, फोर्स करता, इन्फ्लुएंस करता, लालच देता, लेकिन नहीं, वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहा था। इसलिए हमें उसके एक्शंस में शुरू के पीरियड में बाकायदा कंट्राडिक्शंस मिलते हैं। इसी तरह से लास्ट में जब मेहजर, जो हमारे साथी हैं वो मेहजर के बारे में जानते हैं कि वो रिलीजियस पावर अपने हाथ में लेना चाहता था, जो चीफ एक्चुअली काजी था जो है, तो उससे कहा गया, और ये अभी भी सरप्राइज लोग ताज्जुब करते हैं कि उन्होंने पावर अकबर को कैसे दे दी कि वो जुमे की नमाज में खुतबा होता है, वो उसको पावर दी थी कि वो एड्रेस करेगा। ये तो बाकायदा जो चीफ काजी था वो एड्रेस करता था गैदरिंग को, जो नमाज के लिए जुमे की नमाज में आते थे उसको दी। और अकबर से, हालांकि ये मालूम होता है कि अकबर को बाकायदा वो खुतबा लिख के दे दिया, जैसे मुझे कोई लिख करके दे दे लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पाऊँ मुझसे। तो अकबर ने गया बाकायदा, और जब वो पढ़ने लगा तो नहीं पढ़ पाया। तो हर आदमी लेक्चर नहीं दे सकता, अगर आप कितना ही बड़ा बड़ा अफसर हो, लेक्चर देना क्लास में। इसीलिए तो आप जानते हैं बहुत सारे मिनिस्टर्स वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं, और लेक्चर देना तो सब लोग सवाल कर लेंगे तो जवाब क्या देंगे, तो एक तरफा मन की बात किए जाओ, तो जो है उस तरह की। अब तो अकबर जो है पूरा खुतबा नहीं पढ़ पाया और नीचे आ गया और हाथ जो हैंड ओवर कर दिया चीफ काजी को कि आप जाइए और आप ही जो है इसको संभालिए। तो ये उसका फाइनल यहाँ पर आकर के उसने डिसीजन लिया कि इनफैक्ट सुलह कुल, अब जो है रिलीजियन नहीं बल्कि सुलह कुल रहेगी, पीस विद ऑल।
उस इसलिए पहले का जो पीरियड है 1580 के का पहले का, उसमें हमें कंट्राडिक्शन मिलते हैं। उसने बहुत सारे एक्सपीरियंस से मूर्छित हो जाता था बाकायदा, इस तरह की कई उसने अब और, लेकिन अकबर का जो आउटलुक था वो रीजन के बेसिस पे था। अकबर आईने अकबरी को देखे रीजन, अकबर हो चाहे जहांगीर हो, इनको अगर देखे रीजन पे बहुत जोर दिया गया है कि उन्होंने ओबीडियंस पे जोर नहीं दिया गया। और इसीलिए वो जो इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी है उस पे बाकायदा वो बहुत ही अच्छे तरीके से कहते हैं कि जहांगीर भी लिखता है कि वो इलिटरेट था, अनपढ़ था, लेकिन विजडम उसके पास इतनी थी, मेरा ख्याल है अच्छे अच्छे हम लोगों के पास जो पीएचडी होल्डर्स के पास भी नहीं है, क्या उस वो ये कहता है कि अगर ट्रेडिशन, अगर परंपराएं प्रोफेट्स मानते हैं तो इसका मतलब है तो फिर नया धर्म नहीं आता। तो रीजन के बेसिस पे अगर आप चेंजेस लाना चाहते हैं, आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आप डेवलपमेंट चाहते हैं, तो आपको अशोका की तरह और अकबर की तरह रीजन के बेसिस के ऊपर जो है ये, और इसी को अगर मैं ये कहूँ, इसी सूले कुल को महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जानते थे, ही वॉज इंटेलिजेंट मैन, तो वो जानते थे कि यहाँ के लोग क्या चीज पसंद करेंगे। जो एक फाउंडेशन थी इंडियन कल्चर की नेशन के लिए, हेलो हेलो, एक जो फाउंडेशन थी इंडियन कल्चर की, महात्मा गांधी ने अहिंसा को वेपन बनाया और बाकायदा उसी को लेकर के, और अहिंसा के वेपन को, अहिंसा के बाद ऐसा वेपन हुआ कि हमें आज़ादी मिली, और आज़ादी मिलने के बाद जो है हमें उसके बाद भी हमारी जो पॉलिसी रही, वी नेवर अलाइंड विद एक्चुअली कॉम्बेटिंग पावर्स, नाटो और सीटों से हम दूर रहे, और नॉन अलाइंड जो है बाकायदा 4 लोगों ने, जिसमें नेहरू जी वाज एक्चुअली द फर्स्ट पर्सन जो है, इसमें नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, सुकार्नो जोसेफ ब्राउज टीटो एंड नासिर, और जो है दूसरे घाना के जो प्रेसिडेंट है नक्रमा, ये चारों ने जो है नॉन अलाइंड। और उस वक्त I would like to say India was third face and third power in the world. उनकी एक से थी बाकायदा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। आई डोंट नो अब हमने वो पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की कितनी हम फॉलो कर रहे हैं, आप भी बेहतर जानते हैं, जो मैं समझ रहा हूं उससे हमारी पोजीशन जो है कितनी। तो कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि जो इंडिया इमर्ज हुआ एज ए नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन, उसमें अगर हम देखें ये छोटी छोटी चीजें, तो वाकई देयर आर सो मेनी अदर एक्चुअली एग्जांपल्स, जिससे हमें पता लगेगा कैसे एक दूसरे से मिल करके फ्रॉम बिलो टू एबोव जो है हमारी, वो हमारी डाइवर्सिटीज रही पूरी। जैसे मैंने आपसे कहा साथ में खाना नहीं खाते थे, मानसिंह और अजीज को का, सॉरी मानसिंह और रहीमदास जी, अब्दुल रहीम खाने खानन जी ने कहते हैं, वो आप ये आपस में क्रिश्चियन और मुस्लिम्स खाना नहीं खाते थे, अलग खाना खाते थे। लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे जो है अगर देखें तो ऊपर जाकर के उसके सत्ते पे अपने आप को सब आइडेंटिफाई हिंदुस्तानी और इंडियन मानते थे। लेकिन चाहे वो साथ में इस तरह के कई हम अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि इंडिया की कल्चर यूनिक कल्चर इन ए सेंस, जिसको हम लूज करते जा रहे हैं, और थ्रू आउट दी एजेस हम इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि रिलीजन, एकता, सिंथेसिस, और नतीजा ये हो रहा है से साइंस और टेक्नोलॉजी पे जो रिसर्च होनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाहे वो एंशिएंट इंडिया हो, चाहे मिडिवल इंडिया हो, और चाहे अभी कंटेम्परेरी इंडिया हो। इन्हीं ये स्टेट की पॉलिसी होनी चाहिए कि धर्म पर्सनल रखा जाए, अलग रखा जाए, और क्योंकि उस वक्त इंडिया की एक से थी जो यूरोप में नहीं थी, जो अकबर के टाइम में दे फॉर फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द डिविजन्स ऑफ द जो है वही प्रोटेस्ट ऑन कैथोलिक्स। लेकिन इंडिया में बात हो रही थी इंटेग्रिटी की, तमाम रिलीजियंस की। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि साथ में लेकिन उसके बाद भी वो एक थे, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स का साथ में नहीं खाते थे, और हिंदू जो है हिंदूज और मुस्लिम्स ने साथ में नहीं खाना खाते थे। उनके बाकायदा ये हमें पूरा जो है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसको अब बज़ाहिर टाइम होता जा रहा है, तो इसको मैं हार्ड एविडेंस आपको नहीं साइड कर रहा हूँ, लेकिन इट इज ए फैक्ट। लेकिन उसके बावजूद
बहुत जबरदस्त सिस्टम था। ऐसा नहीं था किसी ने क्राइम किया है तो गुड गवर्नेंस के इतने बढ़िया एग्जाम्पल मिलते हैं। जो मुझे थोड़ा सा 2 मिनट और बोल सकता हूँ दीपांकर? हेलो हेलो। जी सर, प्लीज बोलिए आप सर। हाँ, मैं एक दो एग्जाम्पल और दूंगा गुड गवर्नेंस के। देखिए, अरबिक सोर्स में मिलता है कि यहाँ पर जो है गुजरात के अंदर खंबात और केम्बे में ऐसा हुआ, लिखा हुआ है कि वो अरबिक सोर्सेज दिख रहे हैं, कुछ पारसियों ने, क्योंकि ये यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटीज थी, अरब्स और पारसीज, ये सब बिजनेस कम्युनिटीज आई हुई थी, कि उन्होंने एक्चुअली यहाँ के लोकल लोगों को जो है प्रोवोक किया और उन्होंने मुसलमानों की मस्जिद पर अटैक कर दिया और मस्जिद को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जब मस्जिद को डिस्ट्रॉय कर दिया तो जो इमाम था अली, उसने वहां राजा के पास, वो जैसे ही राजा उसके पास पहुंचे, और लेकिन वहां ऑलरेडी ऐसी साजिश थी कि वहां के जो कोर्टियर्स थे, ऑफिशियल्स, वो उसे मिलने ही नहीं दे रहे थे, उसको इजाजत ही नहीं दी, उसको अंदर ही नहीं जाने दिया। तो कहते हैं वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया अली। जब अली पेड़ के नीचे बैठा इमाम, और जब राजा निकले तो वो लपक करके गया और उसने फरियाद की, पिटीशन दी कि सर ये मेरे साथ हुआ है। तो राजा ने कहा, ऑर्डर दिया कि आप वजीर को कि आप सब बंद कर दीजिए और किसी को कुछ मत बताइए। और वो खुद गया केम्बे और जाके जो है बाकायदा पर्सनल इंक्वायरी की, और वहां से पानी का घड़ा, ये लिखा हुआ है कि लेकर के आया, समुद्र का भरा हुआ। और फिर वहां पर एक एक की गवाही ली गई, और जो कहता था उसको पानी जो है वो देता था, वो फौरन समझ जाता था कि राजा वहां जाकर के आया है। तो उसने ये इस्टेब्लिश हुआ कि नहीं, मस्जिद तोड़ी गई है, तो राजा ने ये कहा कि स्टेट के खर्चे पे मस्जिद दोबारा बनी गई, और दो छत्र दिए, जो लिखा बाद तक उन छत्र को ईद के मौकों पे वो बाकायदा प्रोसेशन में निकाले जाते थे। तो ये गुड गवर्नेंस के किस तरह से लोगों को अपनी ट्रेड एंड कॉमर्स को फ्लोरिश किया जाए, लोग डिफरेंट तरीके के रहें और जो है इंडिया डेवलप करें। इसी तरह सिमिलर गुड गवर्नेंस का एग्जांपल जो मैं जस्टिस के साथ कहूंगा, हालांकि जहांगीर का और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी बाकायदा वो जंजीर लगवाई थी, फिर जहांगीर ने लगवाई थी। अगर वो देखें तो फिरोज तुगलक के टाइम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब नया फिरोजाबाद बसा, तो ये, क्योंकि दिल्ली आप जानते हैं 7 जगह बसी है, मैं जस्टिस की बात कर रहा हूँ, जस्टिस को लेकर के किसी भी राजा ने, सुल्तान ने या बाकायदा जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है, चाहे वो नौकर हो और चाहे बहुत बड़ा नोबल हो उसके अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि जब ये फिरोज तुगलक ने नया शहर बसाया, तो ये कहा जाता पहले बादशाह सुल्तान के घर बनते थे, पैलेस बनता था, उसके बाद ऑफिशियल्स के और नोबल्स के उनके बनते थे, और स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग जाकर के वहां बसते थे, उनके घर बनाए जाते थे। तो ये जब प्रोसेस चल रहा था और ऑफिशियल्स वहां शिफ्ट हुए, तो एक क्लर्क था, उसको अपने बच्चों की ट्यूशन के लिए, ये डिफरेंट तरीके से रोशनी डालता है ये एविडेंस, उसको एक ट्यूशन की जरूरत पड़ी और लोग जा नहीं रहे थे। पुरानी दिल्ली जो पहले दिल्ली होती थी उसको पुरानी दिल्ली, आज वाली पुरानी दिल्ली नहीं, जो तुगलकाबाद बसा तो मेहरौली जो है पुरानी दिल्ली कहा जाता, दिल्ली या पूना, पुरानी दिल्ली। तो उस वक्त जो है पुरानी दिल्ली जी थी, वहां से उसने, क्योंकि वो क्लर्क था तो अफोर्ड नहीं कर सकता था एक्सपेंसिव टीचर, तो किसी स्टूडेंट को उसने हायर किया कि वो आकर के उसको बच्चों को पढ़ाएगा और वापस चला जाएगा अपने। और वो स्टूडेंट आकर के उसके बच्चों को पढ़ाता था और चला, तो बाद में वो वीकेंड्स में वहां रहने लगा। एक दिन पता लगा कि उसकी लाश जो है वहां पर मिली है, एक जो है शहर में किसी कोने में पड़ी हुई। तो बाकायदा कोतवाल ने फौरन, और जो है फिरोज तुगलक को पता लगा कि इस तरह का जो है इस तरह की चीज हुई है, तो फौरन का ऑर्डर दिया कि इसकी इंक्वायरी किया जाए कि ये मर्डर कैसे हुआ है। और इस मर्डर को जो है जब इंक्वायरी हुई तो पता नहीं लग रहा था, उससे पूछा गया जिसके पढ़ाने आता था, तो उससे कहा गया, तो ये कहा हमारे यहाँ तो आया था और ये पढ़ा करके रात में चला गया। तो उसने जाकर के कोतवाल ने कहा
कि सर सुल्तान से कि इस तरह की, उसने कहा नहीं, आप फर्दर इंक्वायरी कीजिए कैसे हुआ, और फर्दर इंक्वायरी की गई। फर्दर तो बार बार जब पूछा गया तो पता नहीं लग रहा था, तो आखिर फिरोज तुगलक ने कहा कि ये जिसके यहाँ पढ़ाने आता था उससे सारी प्रॉपर्टी उसकी सीज की जाए और उससे बात की जाए। तो फिर पता ये लगा कि जब उसके नौकरों को, जो उसके स्लेव्स थे, उनको भी बाकायदा पूछा गया, इंक्वायरी हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे जो बाकायदा मालिक हैं, उन्होंने जो है, हमने उसे पकड़ा और उन्होंने उसको जो है कत्ल किया इस तरीके से। तो उसके बाद जो है ये आया बाकायदा, और उसने कितने टन का ऑफर दी कि कंपनसेशन मनी जो है बाकायदा है उसके अंदर इस्लाम में कुछ, कि वो कंपनसेशन मनी दी जाए, तो ब्लड मनी कहते हैं उसे, उसको देने के कहा। तो फिर फौरन कोतवाल फिरोज तुगलक के पास गया और कहा कि साहब वो ब्लड मनी देने को लिए तैयार है, तो वो चाहता है कि वो इस तरह से किया तो उसका कंपनसेशन वो दे। तो क्योंकि उस बच्चे के पेरेंट्स आए थे, जब पता कहे कि कॉप्स है, लाश है, तो उन्होंने आके पहचाना, तो कोई पहचान नहीं रहा था कि ये हमारा बच्चा है तो है। उसके बाद जब उसको ऑफर की गई तो फिरोज तुगलक ने कहा नहीं, इसका मतलब जिसके पास भी 50,000 टन का या उतने टन का है वो किसी की भी जान ले सकता है। नहीं, दैट फेलो मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, मस्ट बी पनिश, उसको पनिश किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि बगैर इनफैक्ट गुड गवर्नेंस के, सोशल जस्टिस के, आप स्टेट को डेवलप नहीं कर सकते, आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं चला सकते। इसी तरह से एक लास्ट पॉइंट मैं ये अर्ज करूंगा कि ये भी एक यूनिक एग्जांपल है कि cow was really considered sacred from very beginning. अरबिक सोर्सेज में भी हमें इसके रेफरेंस मिलते हैं कि हिंदू काऊ को बहुत सैक्रेड मानते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूँ कैसे मानते हैं, उसमें लिखा हुआ है। और बाद तक मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो है, जो सूरी जो जिन मुनि थे, उनको बाकायदा उसने 1000 गायें भेंट में दी, तो गाय को गोमठ बनवाया। तो इस तरह से गाय को बाकायदा एटलीस्ट इन मिडिवल चचना में भी हमें रेफरेंस मिलता है, गाय को सेक्रेट माना गया। और नतीजा ये निकला कि अकबर ने बाकायदा बैन लगा दिया काउ स्लॉटर को। हेलो हेलो, जी सर, Yes, जी sir, सर। you are audible. शुड आई कंटिन्यू? दीपांकर, हेलो, दीपांकर सर। हाँ, शुड आई कंटिन्यू सर, हाँ सर? सर, हाँ सर, हाँ सर, आप हाँ, जो कंटिन्यू। मीटिंग है ना अभी। But Abul Fazl does not relate it with religion. वो कहता है कि ये जो है स्टेट के लिए, प्रेजेंट के लिए, कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काउ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेकोरेट डाइनिंग टेबल पे जो है उसको डेकोरेट करने के लिए सारी चीजें हमें काउ से मिलती है। इसलिए इसके इसके काउ की बाकायदा ये कहा गया कि कोई जो है स्लॉटर नहीं करेगा काउ को। और जब ये खबर पहुंची और बैन कर दिया गया, मीट को बैन कर दिया कुछ दिनों के लिए कि कोई स्लॉटर नहीं होगा, अकबर ने, जैसा कि हम जानते हैं उसका भी। तो थानेसर के अंदर जो अभी का कुरुक्षेत्र है, वहां का एक ऑफिसर का यह पता लगा, अकबर को इंफॉर्मेशन आई कि उसने काऊ का स्लॉटर किया। अकबर ने हाजी इब्राहिम वाज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, उसको बेनिश कर दिया और कोई उस आदमी को रखने के लिए तैयार नहीं था कि उसने गाय का स्लॉटर क्यों कैसे किया। और अकबर दिवाली के मौके पर गाय हमेशा जो है डेकोरेट होकर के गाय लाई जाती थी और सबसे जो ज्यादा डेकोरेट होती थी अकबर उसको अप्रिशिएट करता था। इसी तरह से जहांगीर ने भी जो है बाकायदा उसी पे, मैं अगर खाने पीना भी देखें तो हमें एक्चुअली यूनिटी नजर आएगी डाइवर्सिटीज में, डिफरेंट तरह के खाने हैं। तो उसके अंदर मैं अर्ज ये करा था जहांगीर ने भी जो है वो बैन किया हुआ था और स्लॉटर बैन था और पर्टिकुलर डेज थे। और किसी ने जो है उसको किया, स्लॉटर किया, तो उसने कोड़े लगवाए जहांगीर ने उस आदमी के, किस तरह से स्लॉटर किया।
और यूरोपियन ट्रेवलर जो है जेसुइट फादर वगैरह वो कहते हैं कि ये मीट का इतने दिनों बैन करना इनजस्टिस है गरीबों के लिए। क्या बड़े लोग तो अपने घरों में काट लेते हैं जो है, लेकिन गरीब आदमी जो है उसको ये मीट नहीं मिलता जो मार्केट से वो ये कहते हैं। लेकिन इन्होंने बाकायदा, हालांकि अबुल फजल जुबान दो मौकों में ये बात कहता है कि हिज मैजेस्टी नेवर लाइक टू ईट मीट, और उसने उस मीट, और लेकिन क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो मीट खाते भी हैं, इसलिए कुछ दिनों में, साल में और महीने में हिज मैजेस्टी ने बैन किया हुआ इन दिनों में कोई स्लॉटर नहीं होगा। वो एक खास दिन हुआ करते थे जिसमें स्लॉटर नहीं होता था, तो बाकायदा बैन किया हुआ था। ये शाहजहां के वक्त में पता लगता है कि ये बैन कंटिन्यू कर रहा है बाकायदा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जो राजपूत राजा थे और राजपूत सूबेदार थे, अजीत सिंह है, ही वाज सूबेदार इन गुजरात, वहां उसके एक सूबेदार एक जो है मिलिट्री ऑफिशियल ने उसके जो ईद के दिन कोई मुस्लिम ले जा रहा था गाय को स्लॉटर करने के लिए, उसने उससे छीन ली, जो गाय वाज कंसीडर्ड वेरी सेक्रेड। तो उसकी बाकायदा फिर पिटीशन दी गई, गवर्नर जो अजीत सिंह राठौड़ जो था जोधपुर का, उसने उसको सुना बाकायदा, काजी ने प्लीड किया, काजी ने अपना पॉइंट रखा, तो उसका फैसला यह आया कि इनके रिलीजन में काऊ को जो है स्लॉटर कर सकते हैं, काट सकते हैं, इसलिए काऊ हैंड ओवर कर दी जाए। इसी तरह से राजा राम था साउथ इंडिया के अंदर, उसके भाई ने कहा कि भाई ये जो है यहाँ पर मुस्लिम आए हुए हैं, अरब्स और पर्शियन, ये इस लोकेलिटी उनकी अलग थी, उनकी मस्जिदें अलग बाकायदा थी, जो हमें पता लगता है और जगह भी कि राजाओं ने मस्जिदें बनाई उनके लिए। और क्यों बनाई, मेरा उसमें ठीक है, नॉट रिलीजियस कंसिडरेशन में भी, लेकिन कंसिडरेशन जो ये ट्रेडर्स थे और मर्चेंट्स थे वो उनको एकोमोडेट करना चाहते थे, उनको सहूलियत, क्योंकि यहाँ पर वो कहता है राम कि नहीं, यहाँ पर अगर हम ये बैन कर देंगे मीट वगैरह और काउस, तो ये लोग यहाँ अपना धर्म नहीं बदला है, ये यहाँ पर काम करने आए हैं, इसलिए इनके खाने पीने पे किस तरह की रोक नहीं लगेगी। तो एक तरफ देखिए सो कॉल्ड रूलर जो मुस्लिम है, और वो ये कह रहे हैं, वहां पर जैनुल आबदीन ने काउ स्लॉटर को बैन किया था कश्मीर के अंदर, कश्मीर में भी जैनुल आबदीन जो सुल्तान हुआ है उसने भी, ये ऋषि सूफीज, मोस्ट ऑफ द सूफीज वो मीट नहीं खाते थे उनमें से, और खास तौर से काऊ का तो जाहिर है बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन सूफीज के बारे में भी है कि काऊ को पालते थे, उसका दूध वगैरह तमाम। और वहां पर भी जो ऋषि सूफीज से नूर बख्शिया, सो सॉरी सर, हाँ सर थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है, बस खत्म होने वाला है, एक मिनट, 12:30 अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं मुझे सवाल भी करेंगे ना थोड़े से। हाँ, तो ये एक्चुअली मैं ये कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा था कि ये तमाम डाइवर्सिटीज होने के बावजूद भी जो है हमारा इंडिया जो इमर्ज होकर के आया एज ए नेशन, वो उससे बाकायदा सबसे जो एक ऊपर आसमान की तरह एक एंटिटी बनी है हमारे ऊपर, वो इंडियंस की और इंडियन नेस की, वो बिकॉज ऑफ एक्चुअली दिस इज ए लॉन्ग ट्रेडिशन है ना, उस और फाउंडेशन उसकी इतनी मजबूत है कि लेट अस सी वो फाउंडेशन आज के लोग उसको कितना हिला पाते हैं और कितनी नई इमारत जो है कितनी मजबूत खड़ी करते हैं उसके खिलाफ। वो फाउंडेशन काफी मजबूत रही है, वो हेरिटेज और कल्चर, दैट इज माय सबमिशन फॉर नाउ। प्लीज आई वुड लाइक कोई सवाल हो तो अच्छा लगेगा सर। थैंक यू वेरी मच, आई एम सॉरी कि डिस्ट्रप्शन बहुत हुआ और मुझे भी थोड़ा सा। Suchmita, just briefly ask and sir can comment upon. Sure, sir. बेटा आप हम लोग ले लेंगे और बेल कर, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म खत्म हो जाएगा 2 मिनट, दैट्स व्हाई आप वोट ऑफ थैंक्स करा दीजिए, वोट ऑफ थैंक्स कराइए सर से। Okay, sir. So now I request Mr. Ajit Kumar to present the vote of thanks. अरे सवाल नहीं है सर को सवाल तो बोल दो, पहले क्या है वो पहले बता दो। Actually, sir, ये 12:30 को खत्म हो जाएगा, इसीलिए आप सवाल पढ़ दो बच्चे। Okay, okay, sir. आप सवाल पढ़ दो बच्चे। Sir, this question is from Ashish Raghuvanshi. If there was oneness from starting, then why after the fall of major power, there were regional states like in 15th century and again in 18th century and in 20th century, India was divided?
Can we really talk of oneness from below then? देखिए ये जो सवाल, ये आइडेंटिटीज अलग थी, लेकिन वहां पर जो स्टेट्स भी बनी उनकी भी अगर आप कल्चर देखें, पॉलिटी देखें तो वो उस तरह से रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। वहां पर भी आप देखेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी थी उन स्टेट्स में भी। वो पॉलिटिकल रीजन से जो बाद में भी 18th सेंचुरी में भी रहे हैं, और कुछ यूरोपियंस ने कोशिश की है कि हिंदू राष्ट्र कुछ, लेकिन वो उसका कोई एक्चुअली जो एक्सेप्टेंस नहीं था। जैसे बनारस को लेकर के लोग बात करते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि भाई जो पर्सनल फेथ है, जो ऐसे मुगलों ने कभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया अपने आप को क्या वो एक्चुअली इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव है, इस्लाम का एक्सपेंशन चाहते हैं। दे नेवर आस्क्ड, देयर इज नॉट अ सिंगल सेंटेंस। तो इन स्टेट्स में भी पॉलिटिकल डिविजन्स टाइम टू टाइम होते रहे। जैसे पाकिस्तान भी बन गया, पाकिस्तान अलग बांग्लादेश बना, वो दैट इज इंटायरली डिफरेंट थी। लेकिन उनकी जो नेचर थी उन स्टेट्स की, वो नेचर भी सेक्युलर थी, मतलब उस सेंस में, एक लफ्ज में समझाने के लिए कह रहा हूँ, उस तरह की नहीं थी। वो तो बजाय डिफरेंसेस पैदा होते